रब मन आतम साहिबा। Hi guys. Ladies and gentlemen, Steven Band! This is my latest song going on right now. I thought I'd sing for you. Jai Shri Krishna. Already? So that's Sahiba, make some noise! थोड़ा लाइन जा देता हूँ। बिन पूछे ही जान ले मेरा हाल तुम्हारिया, ख्यालों का भी रखता मेरे ख्याल तुम्हारिया। हम लोग जहाँ बैठे वहाँ पे नहीं थोड़ा Thank you, that's it. बंद कर दो। So I think since you guys are here, तो मैं ऐसी कुछ एक लाइन गा देता हूँ आप लोग। ना मैं जानूं ना तू जाने कैसा है ये मौसम, कोई न जाने कहीं से फिजाई गमों की धूप संग लाई। खफा हो गए हम, जुदा हो गए हम, वो लम्हे कोई न जाने थी कैसी रातें हो बरसा दे वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। Thank you. Ladies and gentlemen, give it up for my brother, musical gem, Steven Band! Make some noise for this musical sensation, upcoming singing superstar, and what a massive welcome, Steven. Oh, amazing यार. Steven, एक चीज हर कोई जानना चाहता है, स्पेशली ये कोड जो है इंजीनियर्स क्रैक करना चाहते हैं कि हर गाना टॉप 3 में, टॉप 10 में कैसे पहुंच जाता है. आवाज को तो कमाल है, मोहतरमा कहेंगी उफ माशाल्लाह, हॉटनेस का कमाल तो है ये. Look at her expressions. I think this can't happen without these guys. I think मुझे ऐसा लगता है कि जो सुनते हैं, जो सबसे ज़्यादा गाना कंज्यूम करते हैं, जो गाने को बार बार बजाते हैं, गाना वहीं से हिट होता है. I think there's no secret or anything. I think it is whatever. I'm standing here right now and whatever I'm doing is because of you guys. So it's you guys. Thank you. Wow. And like I said, मैंने इनसे कहा था कि मैं IIT क्रैक नहीं कर पाया था और आज मैं IIT बॉम्बे के स्टेज पे हूँ. सो आई थिंक ये एक इंस्पायरिंग चीज़ है. मगर एक इंस्पायरिंग चीज़ और है जो हम स्टेबिन से सीखते हैं. कम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी Bhopal, and now the world knows this guy. So give it up once again for this guy who has inspired everybody besides being a musical sensation. और साहिबा गाना जो है टॉप 3 में है Spotify में, it's trending everywhere, reels बन रहे हैं आए दिन. ग्लोबल चार्ट्स में यू आर नंबर 10. ऑफ कोर्स ये जनता का प्यार है, आपकी आवाज़ का जादू है. ऐसे में एक सरप्राइज और होने वाला है एक्सक्लूसिवली आज पहली बार IIT बॉम्बे मूड इंडिगो में. आर यू एक्साइटेड? सो स्टेबिन, मैं चाहता हूँ जो सरप्राइज है वो हमारी ऑडियंसेस को, हमारी जो इंजीनियर्स हैं
स्पेशली मैकेनिकल वालों को वो दे दिया जाए। मैं सिविल इंजीनियर हूँ वैसे, Oh my God! so I think it just feels like one whole family. I'm so happy to be here, guys. My debut song was "Rula Ke Gaya Ishq Tera," my first heartbreak song, and then my first romantic song was "Thoda Thoda Pyar Hua Tumse," which was Siddharth Malhotra. Whoa! And then I gave this song last year, "दीवाने हम नहीं होते दीवानी रात आती है." But आज आप लोगों के लिए जो बहुत स्पेशल है वो है कि मेरा जो नेक्स्ट सॉन्ग रिलीज हो रहा है वो मैं आप लोग के सामने सबसे पहले आप लोग के लिए प्ले कर रहा हूँ, किसी ने नहीं सुना है। Wow! I swear to God, not even my friends, not even my closest friends, the first time this song will be playing anywhere, it is just to you guys, all of you. सारे मैकेनिकल वाले हैं यहाँ, सब मिक्स है ना, सारे पढ़ाकू बच्चे एक साथ हैं। Okay guys, I'm so happy to be here. Okay, so now can I reveal more things about the song? Yes, बिल्कुल। Are you excited to listen? The first time happening. अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इस गाने का ना वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ा के रखें, क्योंकि अभी लास्ट भी सॉन्ग बहुत नीचे चल रहा था। Who's the engineer out there? Somebody who सारे इंजीनियर ही है लोग, म्यूजिक इंजीनियर कोई है जो वॉल्यूम बढ़ा सकता है अगले गाने में, क्योंकि the next song I'm gonna play is my release which might happen tomorrow and which features, ये मेरा पहला गाना है सोनू सूद के साथ। Can I have some lot of noise for सोनू सूद? Wow! So I've loved him always. I've taken a lot of inspiration from him, and मतलब मेरे अलावा सब inspiration लेते हैं उनसे और हम सब उनको बहुत प्यार करते हैं। And this is my first song with him, and I'm so happy that I've sung this song with him, and it's my first collaboration with him, and I can't wait you guys to hear the song. Are you guys ready? Are you guys ready, engineers? Make some noise! बाकी तो मैं इनको भैया के साथ ही सुनाऊंगा। कैसा लगा गाना गाइस? मुझे लगता है कि अगर आप लोग गाना पसंद आ गया तो गाना हिट है, बिकॉज दिस इज जेन जी। या यू गाइस स्टार्ट एवरीथिंग। गाना शुरू यहीं से होता है, फिर खत्म भी यहीं होता है। जब आप सुनना बंद करते हो तो गाना हट जाता है चार्ट से। सो कैसा लग रहा है गाना गाइस? बताओ जल्दी जल्दी। You love the song? Okay now. So now, I think next line I will sing with Bhaiya only when he comes. I just want to say one thing, Stebin. After listening to the beats of Rua Rua, goosebumps. I just love this track. आपके track top 3 में जाते हैं, top 10 में जाते हैं. This is gonna break the internet. This is gonna be the #1 song, ladies and gentlemen. Give it up for the man himself, Stebin Ben. और आप लोग
विटनेस रहेंगे कि जब ये गाना टॉप 1 में जाएगा। और आज मूड इंडिगो में गाना लॉन्च हुआ है। आई एम श्योर इसके बाद हर एक सिंगर चाहेगा कि हमें गाना जो है वो मूड इंडिगो में IIT बॉम्बे में जाके लॉन्च करना है। सो थैंक यू सो मच गाइज, thank you so much engineers. But on that note, Stebin, the time has come to call the gangster, the real engineer. Yes, everybody is engineer until the real gangster engineer comes in. Ladies and gentlemen, mood indigo में बना देंगे वो आज mood. रुको सुनो, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं मुझे मजा आएगा स्टेबिन, क्योंकि फतेह है। सो मैं चाहता हूँ कि जो उस फिल्म का ट्रेलर है ना, तो वो दिखाया जाए पहले। क्या कहते हैं? I think that's the best. Guys, do you want to see the trailer? Make some noise. Do you want to see the trailer? Let's have the trailer of film Fateh. बनियन से यही चीज कही है, everybody is engineer until the real gangster Sonu Sood comes in. How are you doing guys? वैसे मैं भी इंजीनियर हूँ यार, आप जैसा इंटेलिजेंट नहीं हूँ। कभी हिम्मत नहीं थी कि सोचा कि मैं IIT में जाऊँगा, मुझे पता था मेरी ताकत नहीं है, बट फिर भी बन गए इंजीनियर। और आज जब मैं कैंपस में एंटर कर रहा था, आई विश कि यार वापस ये ज़िंदगी शुरू हो पाती, वापस कोशिश कर पाता। इनफैक्ट मेरे जो प्रोफेसर नितिन सर जिन्होंने मुझे पढ़ाया नागपुर में, वो भी है सर यहाँ पे। क्या बात है। आपको पता है कि मेरे मदर प्रोफेसर थे, वो हमेशा बोलते थे कि हर एक टीचर की जो धरोहर होती है उसके स्टूडेंट्स होते हैं। और वो रहे नहीं, बट जब भी मैं अपने कलीग से मिलता हूँ, अपने प्रोफेसर, अपने टीचर से मिलता हूँ, मुझे लगता है कि आज हम जहाँ पर भी पहुँचे हैं उन्हीं की बदौलत है, और आप भी कल जहाँ पर भी पहुँचेंगे। सो टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, तो इसलिए कभी मत भूलना, कोई भी आप लेवल पे जितनी भी कामयाबी पालें, आई थिंक टीचर्स आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल कि जहाँ पर भी आप पहुँचते हैं वो उनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। सो अ बिग सैल्यूट टू एवरी सिंगल टीचर, एवरी सिंगल प्रोफेसर वी हैव इन अ कॉलेज, एंड गॉड ब्लेस यू। यार आप इतने इंटेलिजेंट हो, मैं कमाल। मैं जब अंदर घुस रहा था मुझे इतने दिख रहे थे स्टूडेंट। आप सारे इंजीनियर्स हो क्या? हमारा यार देश हमारा सही हाथों में जा रहा है दोस्त। कैसा लगा आपको फतेह का ट्रेलर? जब मैं नागपुर से मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई और मुझे लगा कि मुझे मतलब आपके यार दोस्त होते हैं यार, तो एक्टर टाइप लगता है, ट्राई कर ले। तो जब आई वाज बिटन बाय दिस एक्टिंग बग, आई केम टू मुंबई, नेवर न्यू अ सिंगल सोल हियर, बट एक ड्रीम से। और फिर आप अपना काम करना शुरू करते हैं, एक्टिंग करते हैं, बहुत सारी फिल्म्स करते हैं, नाम भी बड़ा होता है। पर बहुत सारी ऐसी फिल्म्स और इस जर्नी में बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो और थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है। बहुत दफ़ा आप फिल्म्स करते हैं, कई बार आपके रोल्स कट जाते हैं, कई बार आप पोस्टर से निकल जाते हो, कई बार जैसी आपकी एंट्री शूट हुई होती वैसी होती नहीं। और फिर जो आपको 20-22 साल सिखाते हैं, फिर आपको लगता है यार अभी सीख लिया है, अब खुद कलम उठानी पड़ेगी, खुद की कहानी लिखनी पड़ेगी। सो फतेह इज द फिल्म दैट आई रोट, प्रोड्यूस्ड, एक्टेड एंड डायरेक्टेड ऑल्सो। इतनी स्ट्रगल के बाद एक इंजीनियर ही फतेह हासिल कर सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां। लेट्स हैव दिस पैनल डिस्कशन सोनू पाजी ऑन दैट नोट। जी भाई, और मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं फिल्म बना रहा था तो एक अलग तरह की स्ट्रगल होती है। अगर लोग मेरे को एक्टर्स हों या जो भी मेरे फिल्म की दुनिया के लोग हैं वो जानते तो हैं, दोस्त हैं, पर हर बंदा सोचता है ना यार अच्छा ठीक है एक्टिंग कर लेता है यार, अभी डायरेक्ट क्या करेगा, इसको थोड़ा डायरेक्शन का कुछ पता है ना। आई न्यू दैट थिंग इज़ गोइंग टू हैपन एंड मैंने इज अप्रोचिंग एक्टर्स, या फिर बोलते हैं हाँ यार अच्छा है, मैं थोड़ा सा वहाँ पे डेट्स का थोड़ा इश्यू लग रहा है, मैं ऐसा कुछ रोल कर रहा हूँ।
सो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, जब फिल्म का ट्रेलर आएगा तो फिर हम बात करेंगे। अपने मन में मैंने बात किया, एंड व्हेन द ट्रेलर रिलीज एवरी सिंगल इंडिविजुअल कॉल, अरे यार तो अगली पिक्चर बनाएगा ना, मेरे को पक्का लेना। सो आई थिंक दिस इज व्हाट द जर्नी इज। और जब मुझे लिखने का बड़ा शौक है, तो बड़ी फिल्म्स में मैंने डायलॉग्स लिखे, हिट भी बहुत हुए, अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले उनको, लेकिन कभी क्रेडिट नहीं लिया। तो फिर मुझे लगा जब इस फिल्म के डायलॉग्स लिखने, जो मुझे आता है थोड़ा बहुत वो लिखता हूँ, तो इस फिल्म में एक बड़ा कमाल का डायलॉग है जो मैंने लिखा था। मुझे लगता है हम सब पर, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उन सब पर वो लागू होता है, जो नसीर भाई ने बोला था कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक समय आता है, हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। क्या बात है, क्या बात है। सो पन्ना पलटने का समय आप लोगों की ज़िंदगी में भी है, मेरी ज़िंदगी में फतेह से हुआ, बट पन्ने पलटते रहना, क्योंकि इतिहास खुद ही रचना पड़ता है, खुद ही लिखना पड़ता है। फिर बाकी छोड़ देना लोगों पर, वो पढ़ते रहेंगे, लेकिन इतिहास आप लोग रचेंगे यार। और यू नो, क्योंकि मुझे पता है कि जितने हमारे खासकर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनको लाइंस, डायलॉग्स, इनका बड़ा मज़ा आता है बोलने का। तो इसमें जब आप फतेह देखने जाएंगे तो ऑल आई कैन प्रॉमिस यू इज कि इसमें जो आपने एक्शन देखोगे, मैंने करीबन 80 से 90 फिल्में की होंगी अलग अलग भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, चाइनीज़, मराठी, जैकी चैन, सबके साथ काम किया। सो जब मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, जब मैं अपनी फिल्म बना रहा था, सो मैंने सब एक्शन डायरेक्टर्स के साथ काम किया देश भर के। सो मुझे लगा कि अगर मैं अपनी फिल्म बना रहा हूँ तो उसमें ऐसी क्या खासियत होनी चाहिए जो किसी फिल्म में ना हो, या मैंने आज तक कभी किया ना हो। क्योंकि हमें जब एज एन एक्टर्स हमें स्क्रिप्ट कहानी मिलती थी, एक्शन, जो भी आप फिल्मों में आज आप एक्शन देखते हैं, कितनी बड़ी से बड़ी फिल्म, उसमें एक्शन का स्क्रिप्ट नहीं होता। उसमें क्या होता है, एक क्लाइमेक्स है, वहाँ पे बहुत सारे गुंडे आएंगे, लड़ाई होगी, एक गाड़ी उड़ेगी, 2 गाड़ियाँ उड़ेंगी, फिर एक ब्लास्ट होगा, वो इधर गिरेगा, उधर गिरेगा, ऐसे होती कहानी स्क्रिप्ट। आज तक मुझे उन 80 से 90 फिल्मों में वर्किंग विद द बेस्ट ऑफ एक्शन डायरेक्टर्स, बेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स आज तक मुझे नहीं मिला, क्योंकि कहानी का स्क्रिप्ट, एक्शन का स्क्रिप्ट नहीं होता। सो जब मैं फिल्म बना रहा था तो मैंने अपने बेटे को बुलाया और उसके कुछ दोस्त वगैरह आए। मैंने बोला कि आप लोग क्यों देखने जाओगे फतेह? तो उन्होंने बोला कि डैड, उसमें एक ऐसा एक्शन की सीक्वेंस होना चाहिए जो कभी हिंदुस्तानी फिल्म में बना ही ना हो। सो मेरे माइंड में सवाल था कि ऐसा कैसा एक्शन सीक्वेंस होगा जो कभी किसी ने देखा नहीं होगा, ऐसा क्या बना सकते हैं खास? क्योंकि अगर मैं एक्स अमाउंट करूँगा तो कोई 10 एक्स लगाने को रेडी है, कोई 20 एक्स लगाने को रेडी है, तो मेरा एक्शन क्यों स्पेशल होगा? तो उसने बोला कि ऐसा एक्शन सीक्वेंस है जिसमें कोई कट ही ना हो, जो ऐसे लगे कोई कर ही नहीं सकता। सो मुझे वो आइडिया बड़ा कमाल का लगा, तो मैंने उस एक्शन का स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया कि वो होगा क्या, मारेगा क्या, किसको, किस चीज़ से मारेगा। अक्सर चीज़ें अपने आप हाथ में आनी शुरू हो जाती हैं एक्टर्स। तो उसमें एक जर्नी लिखी उसकी कि अगर वो पहले गन से लड़ रहा है तो गन खत्म होगी तो मैगजीन से लड़ने शुरू करेगा, मैगजीन खत्म होगा तो वहाँ एक प्लेट पड़ी होगी, प्लेट से लड़ना शुरू करेगा, केटल पड़ी होगी, केटल से लड़ना शुरू करेगा, पैन पड़ा होगा तो पैन से लड़ना शुरू। सो जो प्रॉप्स उसको दिखते जा रहे हैं, ही मेक दोज वेपन्स। सो जब स्क्रिप्ट को लिखा, so I spoke to Lee Whittaker, who's an action director who's worked with Fast and Furious, Captain Marvel, Jurassic Park. So मैंने उनको बोला कि मुझे एक ऐसा एक्शन सीक्वेंस शूट करना है जो कभी किसी ने देखा ना हो हिंदुस्तान में, and he loved it. He said कि सोनू बहुत कमाल का, it's beautiful, but we don't have those number of stuntmen in India who are 70-80 people you are fighting with, and if one person goes wrong, the 69th goes wrong, you have to do the whole sequence again and again, so we are never going to finish. So I said, but we have to make this happen. So we called people from Mexico, from South Africa, trained them. 2.5 months of prep went into that one action sequence, which is a 3.5 minute, no cut, single shot. और when we have our friends, हम लोग जब अपने दोस्तों से मिलते हैं तो we always talk about cinema, जो यार हॉलीवुड का फिल्म होता है, obviously we don't have those kind of budgets, but हम बोलते हैं यार हमारी फिल्म में वैसी क्यों नहीं दिखती, हमारी एक्शन वैसा क्यों नहीं होता, हमारा साउंड वैसा क्यों नहीं होता। सो हमारे पास कोई जवाब नहीं रहता। सो लेकिन मेरा खुद का सवाल था, इसलिए मैंने कोशिश किया कि उन जवाबों का आंसर दे पाऊँ। सो आई गॉट वन ऑफ द टॉप DOPs इन द वर्ल्ड, विंसेंजो फ्रॉम इटली। आई सेड मेरी फिल्म दिखनी चाहिए हॉलीवुड जैसी दिखनी चाहिए। वी गॉट हिम। देन द बैकग्राउंड स्कोर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसका साउंड कैसा क्रिएट हो। हांस जिमर के कितने लोग फैंस हैं? हांस जिमर
I get goosebumps when I talk about it. Hans Zimmer is someone who has given the BGM for Interstellar, Inception, Top Gun, Gladiator, Dune, और कौन सी? Many more films. So he won it. Sorry? Spider-Man, Batman, Dark Knight, सब जो इन फिल्म्स का Hans Zimmer had given the BGM. He's one of the top in the world. And हम लोग उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, बट बोलते हैं जब दुआओं का सिलसिला होता है. सो आई वेंट एंड वी गॉट दिस ट्रैक विच इज़ कॉल्ड टू द मून, डन बाय हांस जिमर, विच इज़ अ साउंड ट्रैक ऑफ फतेह. फिर मैं उनकी एक इंटरव्यू देख रहा था, हांस जिमर के वर्ड टू वर्ड चालू थे. आई वाज गोइंग थ्रू द इंटरव्यू. वहाँ पे एक अगर आप ड्यून की साउंड देखें, जो अगर आप लास्ट में अगर जो एक हमदा एक ऐसी साउंड चलती है ड्यून की एक लड़की की. सो जब मैं उनका पढ़ रहा था, एक इंटरव्यू देख रहा था हांस जिमर का, ही सेड कि आई गॉट टू मीट दिस गर्ल, हर नेम वाज लोआर कॉटलर, और उन्होंने ऐसा गाया और लगा कि ये दोबारा ज़िंदगी में कभी गा नहीं सकती, वो इस स्केल पे गाई. सो मुझे लगा यार अगर जो वॉइस ऑफ ड्यून है शुड बी द वॉइस ऑफ फतेह. सो आई गॉट कनेक्टेड इन 2-3 days वी मेड दिस हैपन. एंड जो आप आवाज़ सुन रहे हो और जो फतेह जब आप देखोगे, the voice of Dune is going to be the voice of Fateh. Wow. So all I promise you, मेरी कोशिश है, ईमानदारी से, मैं नहीं बोलता कि मैंने इतिहास रच दिया है, लेकिन ईमानदारी से बनाई एक ऐसी फिल्म विच विल मेक यू प्राउड. और जब आपके दोस्त कोई पूछेंगे ना हमारी पिक्चर हॉलीवुड जैसी साउंड क्यों नहीं करती, एक्शन वैसा क्यों नहीं दिखता, उनको फतेह के पोर्शंस दिखा देना. आई प्रॉमिस यू आई वोंट लेट यू डाउन. ये भी एक फतेह. और मेरे भाई ने स्टीवन बेन, और उन्होंने जब भी गाना गाया रुआ रुआ, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रैक्स ऑफ माई फिल्म. और आज उसका इनफैक्ट टीजर रिलीज़ होगा, कल सॉन्ग रिलीज़ होगा. आई प्रॉमिस यू, मार्क इन योर मोबाइल फोन्स, 10 दिन बाद आप ये गाना हर जगह गुनगुनाएंगे यार. और बाद में हम लोग वैसे 10 जैन को थिएटर्स में मिल ही रहे हैं, और मज़ा आएगा. और बोलते हैं ना कि भाई गुरु जी दा खालसा, भाई गुरु जी दी फतेह. हाँ जी भाई. Paji, it's always a pleasure to see an engineer finally coming in IT Bombay, and ऐसे में अपने आप में सबसे बड़ी फतेह है कि भाई इंजीनियर ही इतिहास रचते हैं. क्यों भाई? क्या बात. क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं. वैसे ये भी मेरी फिल्म का डायलॉग है. Let's have a little chat, Paji, है ना? थैंक यू. अरे भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठे? भाई के लिए तालियां एक बार. जी Paji. So ladies and gentlemen, we have Sonu Paji. Sonu Paji, you've been the actor, director and writer of this film. तो सबसे difficult aspect क्या रहा था आपके लिए? Of course acting तो सबसे easy रही होगी I'm sure आपके लिए. So because ये अपने आप में बहुत बड़े-बड़े departments हैं. यार मुझे ना इनसे दूर नहीं है, पास चलते ना अपने. छोड़ जी sure. इधर बैठे अच्छे लगते हैं, यहाँ से पास से बात करते हैं. So I feel the whole world of cinema is magical. I know there are a lot of creative people we have here today, but when you direct something, so lot of responsibility comes on your shoulders कि आपको पहले एक्टर को समझाना है. तो अच्छा राइटर भी हो तो पहले लिखना है, फिर बाकी सब एक्टर्स को समझाना है कि क्या क्या बोलना है, क्या इमोशन है, फिर खुद याद रखना है एज एन एक्टर. फिर आपको कैमरामैन को समझा के ना कि यहाँ पे इतना ट्रॉली शॉट होगा, ये लाइटिंग होगी, ऐसा होगा वैसा होगा. एंड देन यू हैव टू एक्ट, एंड देन यू हैव टू गो बैक एंड चेक एट द मॉनिटर कि आपने कैसा काम किया, सामने वाले ने कैसा काम किया. सो इट्स अ प्रोसेस, बट द होल जर्नी हैज़ बिन वेरी वेरी स्पेशल. मुझे लगता है कि खुद ही आपको खुद से बेहतर कोई नहीं जानता कि आप क्या कर सकते हो. और आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक समथिंग स्पेशल, एंड आई होप कि लोगों को पसंद आए जब वो आए. क्या बात है. बाहर से लोगों को लेके आना है. पर मुझे मेरी मदर की एक लाइन याद आती थी कि कहती, सोनू कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा. तो मुझे लगता है हमारे हर किसी के अंदर एक वो ताकत होती है, शक्ति होती है. वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि यार हम लोग करते हैं. और विश्वास मानिए कि जब आप दूसरों के लिए करने की कोशिश करते हैं, तब ज़िंदगी बदलनी शुरू होती है. तब ऊपर वाला सब वो रास्ते दिखाना, बनाना शुरू करता है कि कैसे किया जाता है, कैसे होगा. वी ऑल wait for us to become successful, rich,
इन्फ्लुएंशियल कि यार मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, बहुत इंजीनियर बड़ा बन जाऊंगा और फिर उसके बाद मैं मदद करना शुरू करूंगा। विश्वास कीजिए मेरे साथ आज भी जितने लोग जुड़े हुए हैं वो कोई बहुत अमीर लोग नहीं है, कोई फेमस लोग नहीं है, वो छोटे छोटे गांव में रहने वाले, कोई कपड़े की दुकान पे काम करता है, किसी का छोटा सा ढाबा है। सो दीज आर द पीपल हु एक्चुअली जॉइंट हैंड्स विद मी इन दैट मोमेंट कि किसी का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड भेजना है तो अपना बंदा साइकिल पे जाता था। किसी बिहार वाले को अगर भैंस खरीद के देखनी है तो बेचारा उसके लिए भैंस खरीदने के लिए जाता था। सो द आइडिया वाज कि आपको समय देना पड़ता है। वी ऑलवेज फील कि वी आर सो बिजी विद आवर लाइव्स कि यार बहुत पढ़ाई करनी है, इंस्टाग्राम पे लाइक चेक कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं और हम लोग उसमें कई बार भूल जाते हैं। बट आप विश्वास मांगिए कि अगर आप, आई ऑलवेज बिलीव कि सबसे दो बड़े शब्द होते हैं, उम्मीद और दूसरा होता है कोशिश। अगर आप किसी के लिए उम्मीद नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है, और अगर आप किसी के लिए कोशिश नहीं कर सकते तो भी आपका जीवन अधूरा है। क्या बात है, क्या Be बात। someone's hope. Try to put an effort. वो कहते हैं ना कि अपनी जिंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल ले, अपनी जिंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल ले, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा। क्या बात है, वाह वाह। थैंक यू। ऑन दैट नोट सोनू पाजी, मैं चाहता हूँ IIT बॉम्बे के साथ एक हमारी सेल्फी हो जाए। सो मैं चाहता हूँ सोनू ये क्या हो गया? वाह। Guys, we want you to turn on those flashlights. Yeah. So guys, basically music इसलिए low किया है so that you can take your time and turn on the flashlights because this is